Okay, let us start the lecture. So today we will do some problems on measurable functions. So the problem number 1 is give an example of a non-measurable function. Give an example. Give an example of a non-measurable function. Give an example of a non-measurable function f. Okay, function f such that mod f is measurable. Its mod is measurable. Okay, such that mod of f is measurable and an inverse image of every singleton set is measurable. This is measurable. Is measurable for each a belongs to R. For each a belongs to R. Let us try to solve this problem. So we have to find a non-measurable function. Okay, तो ये हम सिर्फ नॉन मेजरेबल सेट की मदद से डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको एक बार एग्जांपल दी थी, एक्जिस्टेंस ऑफ a non-measurable set. And we know that there are subsets of interval 0 1 which are not Lebesgue measurable. So take a non-Lebesgue measurable subset E of interval 0 1 which exists, जो हमने किया है. Take a non-Lebesgue measurable subset of interval 0 1, जो हमने किया है ना विटाली की जो कंस्ट्रक्शन है. टेक दिस एंड कंसिडर द फंक्शन and consider the function let's define this function. Fx is equal to its x if x is in E, and it is minus x if x is in the complement of E. If it is in 0 1 minus E, set difference. So this is the definition of this this is the definition of this function. Okay, f. And you can see that mod of f is measurable. Mod of f is always measurable because mod of f is equal to x. It's if it is in A, it's x. If it is in 0 1 minus E, then it's minus x, but mod is always x. Okay, it's a positive valued function. So we have mod f of x is equal to x for all x in interval 0 1. So is this function measurable? Mod f
mod of x equal to x for all x in the interval 0 1. So it's obviously measurable. It's in fact it's actually a continuous function. It's identity function है ना, ये continuous function है actually. This function is continuous. So here f is a function from the interval 0 1 to r. Okay. So and consider a function f. Okay, इसको आप इसका डोमेन भी आप लिखिए ना क्या है, interval 0 1 to r. Okay, this is your function. Now this function is obviously continuous because you can see inverse image of every open set. अगर कोई भी open set आप लोगे ना R में, उसकी inverse image वही होगी ना, that so it's actually inclusion map, huh? Inclusion map mod of f. So every inclusion map is continuous. अगर आपने टोपोलॉजी में वो रिजल्ट किया होगा, every inclusion map is continuous between the topological spaces. अगर x होगा ना, y होगा सब स्पेस x का, यहाँ पर इंटरवल 0 और सब स्पेस x. फिर अगर आप इंक्लूजन मैप डिफाइन करोगे, y तो इंक्लूजन मैप क्या, इट इज जस्ट एन आइडेंटिटी मैप but it's not on whole space. Okay, it's on a subspace. I of y is equal to y for all y in y. इसको हम कहते हैं इंक्लूजन मैप. हाँ, अगर y x के बराबर होगा उस केस में ये आइडेंटिटी मैप होगी. और इंक्लूजन मैप्स हमेशा जो होते हैं ना, ये कंटिन्यूस होते हैं. इसका हम प्रूफ भी लिख सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. आपको प्रूव करना है treating both them as a topological space and this interval as a subspace of R. R is a topological space with usual topology. Then if you take any open subset of R, we have the same topology. Okay, so if you take any subset, open subset of R, you will see that the inverse image of that open subset will be an open subset of 0 1 by treating 0 1 as a subspace of R. So let's take an open set. Let V be an open subset of R. Okay. So let's see this. What's this inverse image? That's very important. This is the interval 0 1. Okay, this is your interval 0 1, and this is the whole space RC, and image of x under this inclusion map is x. Okay. So this interval is subset of it है ना, ये इसका subset है R का. This is your interval 0 1. R का subset है ये. अब मैंने क्या किया, मैंने R में से कोई ओपन सेट लिया है. अब देखिए, अगर आप इस R में कोई भी पॉइंट लोगे, सपोज मैं पॉइंट यहाँ पर लूँगा कोई से, इसकी इनवर्स इमेज एग्जिस्ट नहीं होगी यहाँ पर, है ना. ये आइडेंटिटी मैप ना, एक्स मैप्स ऑनटू एक्स. आप कोई पॉइंट में ऐसा होगा जो मैं इस इंटरवल से बाहर लूँगा, उसकी ओबियसली कोई इनवर्स इमेज नहीं होगी. सपोज अगर आप मानोगे कि इसकी इनवर्स इमेज से एक्स है, इसकी इनवर्स इमेज एक्स है, तो ये जो मॉड एफ ऑफ एक्स है, ये इट शुड बी इक्वल टू एक्स बाय डेफिनेशन, एंड दैट्स इक्वल टू वाई, क्योंकि ये वाई की इनवर्स इमेज है. इक्वल टू वाई कहाँ से आ रहा है, डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स इमेज, क्योंकि हमने माना कि एक्स इसकी इनवर्स इमेज है. और इक्वल टू एक्स कैसे आ गया, बाय द डेफिनेशन ऑफ द मैप मॉडल. सो दैट एक्स शुड बी इक्वल टू वाई, बट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई.
because y is not in the interval 0 1 and x is in the interval 0 1, क्योंकि x y की इनवर्स इमेज है तो x should be in the interval 0 1. तो जो भी पॉइंट इस इंटरवल से बाहर होगा उस पॉइंट की इनवर्स इमेज नहीं होगी. उस पॉइंट की क्या नहीं होगी? जैसे आप 2 लोगे, 2 की इनवर्स इमेज नहीं है. वी डोंट हैव एन इनवर्स इमेज ऑफ 2. हाँ, अगर आप 1 लोगे, 1 की इनवर्स इमेज 1 है, 0 की इनवर्स इमेज 0 है. कोई भी पॉइंट जो इंटरवल 0 1 में है, 1/2 की इनवर्स इमेज 1/2 है, बिकॉज इट्स मैपिंग, इट्स जस्ट एन आइडेंटिटी मैप. इमेज ऑफ x is x. But now actually I want to find the inverse image of some set. In particular I want to find the inverse image of an open subset of R. So let's take any open subset of R. अगर वो open subset आप यहाँ लोगे, इंटरवल 0 1 का सबसेट लोगे, से दिस इज द ओपन सेट V. इस केस में इसकी इनवर्स क्या इमेज आ जाएगी? इनवर्स इमेज इसकी क्या आ जाएगी? वही यही आ जाएगी ना, यही आपके पास आ जाएगी. इसकी जो आपने V लिया ना यहाँ पर, यही V इसकी इनवर्स इमेज आ जाएगी. क्योंकि जब जो भी पॉइंट इस इंटरवल में है उसकी इनवर्स इमेज वही पॉइंट है, बाय द डेफिनेशन ऑफ the identity map. Let me. आपको अब नजर आ रहा है कि मैं क्या दिखा रहा हूँ? अब मैंने ये पॉइंटर गया यहाँ से कुछ, जिससे मैं शो कर सकता हूँ कि मैं क्या आपको दिखा रहा हूँ. जैसे मैंने ये लिया ना, ये जो इंटरवल मैंने लिया 0 1, ये 0 1 की इमेज है, क्योंकि इंटरवल की इमेज इंटरवल ही होगी. यहाँ पर आइडेंटिटी मैप है, सेम इंटरवल होगी. अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने ओपन सबसेट लिया R का. अब इसकी 2 चॉइसेस है, या तो ये सारा ओपन सबसेट इसी इंटरवल के अंदर होगा, ये भी हो सकता है. उस केस में इसकी इनवर्स इमेज यही सेम सेट आ जाएगी, क्योंकि x की इनवर्स इमेज x है. अगर x इस इंटरवल में है तो अगर वो ओपन सबसेट इस इंटरवल का सबसेट होगा तब जाके उसकी इनवर्स इमेज ये पूरा यही सबसेट आ जाएगी V, जो वो वहाँ पर है. तो V की इनवर्स इमेज V आ जाएगी इफ V इज सबसेट ऑफ द इंटरवल 0 1. हाँ, अगर अब ये ओपन सबसेट इस इंटरवल से बाहर होगा तब जाके इसकी इनवर्स इमेज एम्प्टी सेट आ जाएगी. तो जो दोनों चॉइस. अब और एक केस है, अगर ओपन सबसेट ऐसा होगा जो इस इंटरवल के साथ भी इंटरसेक्ट करे और इंटरवल से बाहर भी हो, कुछ हिस्सा इंटरवल के अंदर हो और कुछ हिस्सा इंटरवल के बाहर हो. उस केस में इसकी इनवर्स इमेज क्या आ जाएगी? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इन जनरल ओपन सबसेट इस टाइप का हो सकता है, ये हो सकता है ओपन सबसेट. दिस विल बी योर V. इसकी इनवर्स इमेज क्या होगी? आपको सिर्फ इस पोर्शन की इनवर्स इमेज मिल जाएगी जो ये इंटरवल के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है. दिस वन, सपोज ये पोर्शन O है, इसका O है इसका ये पोर्शन सपोज, तो उस केस में इसकी जो इनवर्स इमेज आ जाएगी F इनवर्स ऑफ V, ये सिर्फ O आ जाएगा, दिस पोर्शन, क्योंकि इसी पार्ट की इनवर्स इमेज एग्जिस्ट होगी. और ये O किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू, एक्चुअली दिस इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे ये O, ये जो पोर्शन है ये किसके बराबर? ये है बराबर किसके? V इंटरसेक्शन द ओपन द इंटरवल 0 1. इट्स इंटरवल, इट्स V इंटरसेक्शन 0 1. ये जनरल केस होगा. So inverse image of V is actually V intersection 0 1, and the open subsets of 0 1 are of this form actually. तो 0 1 की जो टोपोलॉजी है ना, उसमें इस टाइप के ओपन सेट्स होते हैं. the subspace and the intersection of subspace with all the open subsets of the whole space. जैसे आपके पास y है ना, y अगर x आपके पास गिवन टोपोलॉजिकल स्पेस है, y है सबसेट x का. ओके, y पर आप कैसी टोपोलॉजी डिफाइन करते हो? y पर इस टाइप की टोपोलॉजी होती है, y इंटरसेक्शन O such that O is open in x. O is open in x. ये है सबस्पेस के ओपन सेट्स, और ये ओपन सेट इसी टाइप का है. द सबसेट 0 1 intersection V where V is open subset of R. So that means inverse image of V is open actually. Inverse image of V is open. So therefore which is open? Which is
which is open in the subset 0, okay? In subspace 0. So therefore f is continuous. Therefore f is which is open, ये open है, every open set is measurable, therefore f is continuous, और अगर continuous है तो measurable भी है, and hence measurable, and hence because every open subset of the interval 0 1 is measurable. तो ये जो फंक्शन आ गई f, therefore f is continuous and hence measurable, या आप एक्सरसाइज कीजिए यहाँ पर खुद. every continuous function f from R to R is measurable. It's very simple. Continuous का मतलब ये है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट्स ओपन, आपको प्रूव करना ये मेजरेबल है. आप यहाँ से कोई ओपन सेट लीजिए, आपको प्रूव करना उसकी इनवर्स इमेज, यहाँ से कोई ओपन सेट लीजिए, उसकी इनवर्स इमेज मेजरेबल आनी चाहिए. अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन आ जाएगी और हर कोई ओपन सेट मेजरेबल होता है. तो दिस इज वेरी सिंपल. इनफैक्ट अगर आप इस r को 0 1 से भी रिप्लेस करोगे, उस केस में भी whether you will take whole r or interval 0 1, जो भी फंक्शन इस पर होगी अगर वो कंटिन्यूअस होगी then that function must be a measurable function. So every continuous function is measurable. तो अब ये mod f एक्चुअली आ गया, mod f is measurable, mod f is continuous and is measurable. तो mod f आपने प्रूव किया कि ये measurable है because it's like identity, it is an inclusion map. But we will see that this f is not measurable. F is not measurable. We show that f is not measurable. We show that f is not measurable. For this, let's take any open subset of R. Let V be an open subset of R. Let V be an open subset of R. Then what will be its inverse image? क्योंकि ये पॉइंट पर डिपेंड है. पॉइंट अगर ई में है उस केस में अब यहाँ पर टू वैल्यूड फंक्शन है. इट्स नॉट टू वैल्यूड, इट्स x has two images, depends on the set, whether the set E, suppose set E ये है, this is the set E. अब ये डिपेंड करा कि ये x कहाँ पर है. ये x अगर इस सेट के अंदर है तब उस केस में जो इसकी इमेज है वो x है, ठीक है. और x अगर सेट के बाहर है उस केस में इसकी इमेज जो है ना -x है. Now I have chosen an open set V. मैंने V ओपन सेट यहाँ चूज किया है. V ओपन सेट मैंने लिया है. इस ओपन सेट की इनवर्स इमेज क्या होगी? What's the inverse image of this open set? Instead of open set, मुझे लग रहा है कि हमें क्लोज्ड सेट से ही काम चलेगा. ओके, लेट्स चेक द क्लोज्ड सेट्स. क्लोज्ड सेट से हमारा काम निकलेगा. क्लोज्ड सेट. ओके, this thing, what's the inverse image of negative? जो ना नेगेटिव रियल नंबर्स है उनकी इनवर्स इमेज क्या होगी? व्हाट्स द इनवर्स इमेज ऑफ नेगेटिव? क्योंकि x अगर e में है उस केस में इसकी इमेज x है, या पॉजिटिव अगर आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लोगे उसकी इनवर्स इमेज क्या होगी?
जो ना यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होगी। बट since this set 0 to infinity, okay, let's include this 0 as well, because in our image of 0 is 0, is a closed subset, is a closed subset of R, but what's its inverse image? You can see the inverse image is whole E, क्योंकि जो भी पॉइंट्स E में है ना, जो भी पॉइंट्स E में है उनकी इनवर्स, उनकी इमेज तो X ही है ना, X पॉजिटिव है, X क्योंकि इंटरवल में है, it's E actually. This set is E, which is non-Lebesgue measurable, non-Lebesgue measurable, and hence F is not measurable. Hence F is not measurable. F measurable नहीं है. F is not measurable. अब मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये आपके पास इंटरवल है 0, इसका कोई सबसेट है E जो कि नॉन लिबिक मेजरेबल है, और यहां से आपने इमेज सेट लिया है, आपने -1 से लेकर 1 तक लिया इसको, ठीक है, -1 से लेकर 1 तक, और जो पॉइंट E में है, E के जो पॉइंट्स है ना वो मैप हो रहे हैं इसी पॉइंट पर, X पर ही। सपोज X कोई पॉइंट यहाँ पर E में है, इसकी इमेज X ही है। हाँ, अगर X E से बाहर है, कोई पॉइंट यहाँ पर है जो कि E में नहीं है, ये जो X होगा इसकी इमेज -X होगी, वो यहाँ जाएगा, नेगेटिव नंबर। दिस इज 0 1, ओके, दिस इज, तो यू कैन सी द इनवर्स इमेज ऑफ दिस पोर्शन, दिस 0 1, इट्स होल ही, एक्चुअली इट्स होल ई, ये ई है। और यू कैन से इनवर्स इमेज ऑफ 0 टू इन्फिनिटी भी आप कह सकते हो वो होल, क्योंकि इनकी तो इनवर्स इमेज कुछ है नहीं, ये तो एम्प्टी पोर्शन होगा, जो ये पॉइंट्स है ना उनकी इनवर्स इमेज एम्प्टी सेट है। सो यू कैन से दैट द इनवर्स इमेज ऑफ द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी इज होल ई एक्चुअली। और अगर आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, यू कैन इजीली वेरीफाई दिस, जैसे कि आप प्रूव कर रहे हैं ना दो सेट्स इक्वल है या नहीं, यू कैन प्रूव। Let's choose a point X in E. You will show that the image should be that X should be F inverse 0 to infinity. That you can also do. That's very simple. Suppose आपने पॉइंट यहाँ से लिया, कोई X E में लिया, X अगर E में है तो f of X किसके बराबर है? X के बराबर है। तो f of X अगर X के बराबर है, f of X अगर किसके बराबर है, X पॉजिटिव है ना, क्योंकि X इंटरवल 0 1 में है और E 0 1 का सबसेट है, तो X पॉजिटिव है, तो f of X X के बराबर है। सो दैट मीन्स योर 0 इज लेस और इक्वल टू f of X, which obviously less or equal to 1, that is less than infinity. So which means that X belongs to f inverse 0 to infinity. It's very simple. आप थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिए, it's very simple. तो X आपने E से लिया तो X इसमें आ गया। अब अगर आप X इसमें लोगे ना, f inverse 0 to infinity, you will easily find that element should be in E. For if suppose X is in this, then fx lies between 0 to infinity. So it means that but fx can't be greater than 1. It must lie 0 to 1 actually. So which means that X is in E because E is subset of 0 1. So that's simple. That the reverse inclusion is actually simple. So this means f inverse 0 to infinity is actually E, but the interval 0 to infinity is closed and its inverse image is non-Lebesgue measurable. So that means f is not measurable. F is not measurable function. और एक पार्ट जो इसमें आपको करना है, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी सिंगलटन सेट इज मेजरेबल। हर किसी सिंगलटन सेट की जो इनवर्स इमेज है वो क्या है, वो मेजरेबल है।
आप लीजिए कोई भी सिंगलटन एलिमेंट, लेट ए बिलोंग्स टू आर। अब हम देखिए कि एफ इनवर्स ए क्लोज इमेजिनेबल है कि नहीं है। अब इसमें हम दो चॉइसेस लेंगे, इफ ए इज नेगेटिव, ओके, सॉरी, इफ ए इज negative, okay, good, if a is negative, और यू कैन से हम ये चॉइसेस लेंगे, if a is not in the interval 0 1, if a is not in the interval 0 1, अगर ये 0 1 इंटरवल में नहीं है तब जाके इसकी इनवर्स इमेज क्या आ जाएगी, व्हाट विल बी, नॉट कैन नॉट से लाइक दिस, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकती है, so let's say do it like this, if it's not in the interval -1 to 1, अगर ये इसमें नहीं, उस केस में जो एफ इनवर्स ए है ना, इट्स द एम्प्टी सेट, क्योंकि जो भी पॉइंट्स इंटरवल के हैं ना 0 1 के, वो -1 से लेकर 1 तक की इनकी जो इमेज है ना, जो भी पॉइंट्स है ना यहाँ पर इंटरवल 0 1 में जो भी पॉइंट्स है, उनकी इमेज या तो यही x है या -x है, तो इमेज यहाँ जा रही है एक्चुअली -1 से लेकर +1 तक इमेज सेट है ना। तो दैट मीन्स इफ यू चूज एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ दिस इंटरवल, उसकी जो इनवर्स इमेज होगी दैट मस्ट बी एम्प्टी विच इज मेजरेबल, इस केस में मेजरेबल है, विच इज मेजरेबल। सेकंड केस अगर हम लेंगे कि इस इंटरवल में है बट पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, 0 to 1 पॉजिटिव है, ठीक है, इनवर्स इमेज तो इसमें है बट पॉजिटिव है, तो ये हम ले सकते हैं इफ ए बिलोंग्स टू 0 1 एंड इंटरसेक्शन ई। इसमें भी अब दो चॉइस है, 0 1 में तो है क्योंकि ई 0 1 का सबसेट है, अगर ई में है 0 1 के पोर्शन में, अगर वहां पर भी ई में है, उस केस में इसकी इनवर्स इमेज, what will be its inverse image in that case, it is the singleton set A actually in that case, अगर ये इसमें है then F inverse A is equal to A, अगर ये इस पोर्शन में है। सेकंड, अगर ये इस पोर्शन में है, अगर ये इस पोर्शन में है, नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर है कोई, तो वहां पर उसकी इनवर्स इमेज क्या होगी, वहां पर नेगेटिव है और ई में नहीं है, दो चीजें, नेगेटिव है ऑब्वियसली ई में नहीं होगा, नेगेटिव अगर है तो उस केस में ई में नहीं हो सकता है, तो अगर नेगेटिव है ये, नेगेटिव नंबर की इनवर्स इमेज क्या होगी, माइनस कोई x है और यहाँ पर x है, x की इनवर्स इमेज अगर इंटरवल 0 1 में है तो उस केस में x की इनवर्स इमेज तो x ही है। अब अगर -x है, अगर नेगेटिव है e अगर नेगेटिव है और उस इंटरवल में है 0 1 में, उस केस में ये e में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पॉइंट्स जिनकी इमेज -x है वो पॉइंट्स e में नहीं है। अगर ऐसा है, अगर a जो है, a अगर इस इंटरवल में है -1 से लेकर 0 तक, इसको बस आपको देखना है ये कैसे आ जाएगा, दिस इज, इस केस में जो इनवर्स भी इट्स द एम्प्टी सेट। अगर इंटरवल 0 1 में है तो उस केस में इनवर्स इमेज a है, और अगर नेगेटिव पॉइंट है कोई तो उस केस में इनवर्स इमेज 5 आ जाएगी, क्योंकि x की इमेज -x है, अगर x e में नहीं है, अगर x e में नहीं है, वो 1 मिनट, सॉरी, इस केस में ये सिंगलटन सेट आ जाएगा, इट्स सिंगलटन सेट A और माइनस ए, आई थिंक माइनस से, क्योंकि a नेगेटिव है, माइनस से आ जाएगा, माइनस से, इन दैट केस इट्स इनवर्स इमेज इज माइनस से, माइनस से।
क्योंकि अगर x की इमेज -x है तो x E में नहीं है, तो -x की जो इनवर्स इमेज है ना, -x की जो इनवर्स इमेज है वो x ही है। तो दैट मीन्स जो x की इनवर्स इमेज है ना, x अगर खुद नेगेटिव है तो उसकी इनवर्स इमेज -x है। सो देयरफॉर दिस इनवर्स इमेज ऑफ एवरी सिंगलटन सेट, जो भी सिंगलटन सेट आपके पास होगा वो हमेशा मेजरेबल होगी, क्योंकि इनवर्स इमेज ऑफ सिंगलटन सेट या तो सिंगलटन सेट ही है, और singleton sets are always measurable because their Lebesgue measure is 0. They are null sets actually. So in that therefore the inverse image of singleton sets is Lebesgue measurable because they are either singleton sets or the empty sets. Next exercise जो है, that's every function which is continuous almost everywhere. If f from R to R is continuous function तो होती है measurable, but this function is also measurable. If it's continuous almost everywhere, then show that f is measurable. Then show that this f is measurable. So again आपको यहाँ से कोई ओपन सेट लेना है और इसकी इनवर्स इमेज यहाँ measurable होनी चाहिए. So let's take open subset, okay? So first we see the set where the function is not continuous. Let put E with the set x in R such that f is continuous. F is continuous at x. Okay? Since f is continuous almost everywhere, therefore Lebesgue measure of E complement is equal to 0, which implies E complement and E, they are both measurable. और जब भी real line की बात होगी ना, तो that means we have a Lebesgue measure actually. So both are measurable. Now let's take any open subset of R. Let O be an open subset. O be an open subset of R. O be an open subset of R. So clearly this thing is measurable. Clearly E complement intersection F inverse O, because it's a null set. E complement is a null set. So this thing is subset of E complement. It's measurable. Is Lebesgue measurable? अब मुझे E intersection F inverse O चेक करना, क्या वो measurable है? Now what's E intersection F inverse O? So you know that the restriction functions are always continuous. That's in the topological spaces जो आपने किया होगा, वहाँ पर आपने डिस्कस किया होगा. restriction functions are always continuous. अगर functions continuous है तो वो restricted subspace जो होगी वहाँ पर भी function continuous होगी. Since this f restricted to E is continuous, is continuous, ये continuous है. So therefore अगर ये continuous है तो f restricted to E, इसकी inverse image O क्या होगी? It's open, is open set, is open set. But what is this? It's an open subset of E actually, and you can see this is open set in E, which is a subspace. This is a subspace, okay? This is a subspace of R. So this set is open in E, which is a subspace of R. So therefore there exists an open set V of R
such that F inverse O restricted E is actually equal to, it's equal to V intersection E. So that means F inverse O restricted E is actually F inverse O intersection E. This is F inverse O intersection E. This is equal to V intersection E. So this V is open subset of R, okay?